Hi, hello everybody. Today I am going to discuss thermodynamics part 2. Now the next topic is work. So work is defined as force into displacement, and force is the pressure into area. Since pressure is the force acting per unit area, so force can be written as pressure into area. So work, pressure into area into displacement. Area to displacement can be taken as volume. So in thermodynamics, chemical thermodynamics, the general concept of work done is in expansion or compression of gases, which is frequently referred to pressure volume work. So in thermodynamics, work is defined as the pressure into change in volume, that is delta V with negative sign. Okay, as if there is no displacement, work done is 0. In the same way, if there is no change in volume, delta V equal to 0 or P equal to 0, work done is 0. Okay, so where P is the pressure and delta V the change in volume. Now when the system expands, that is if there is expansion means the final volume will be greater than initial volume, then the work done by the system on the surroundings is given a negative sign. On the other hand, if work is done on the system, that is known as compression, के सिस्टम पे हम कार्य करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, पहले से कम होगा तो डेल्टा वी का साइन क्या आएगा, डेल्टा वी इज नेगेटिव. डेल्टा वी इज नेगेटिव मींस माइनस माइनस प्लस, प्लस होने से वर्क डन डब्ल्यू का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव. ठीक है, तो एक्सपेंशन होने का मतलब है कि पहले वॉल्यूम कमती था, V2 इज ग्रेटर देन V1, सो एक्सपेंड करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो डेल्टा V क्या होगा, पॉजिटिव. तो डेल्टा V पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो प्लस माइनस क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव. ठीक है, सो इफ वर्क डन बाय द सिस्टम देन W इज नेगेटिव साइन, and if work done on the system, that is compression, with delta V is negative, minus minus plus, so W is taken as positive. ठीक है, now some important points regarding thermodynamic work. The work is an extensive properties, means its value depends on the amount or matter of the present in the system. It is a path function. It does not depend on states of the system. When a system changes its states, this work is appear only at the boundary of the system. For expansion into vacuum, P equal to 0, and since P equal to 0, so work done is 0. Work is an algebraic quantity, means it has some sign. For example, if work done on the system, then W is positive. If work done by the system, then W is negative. Heat. Now heat, another significant quantity in thermodynamic process, is defined as the quantity which describes the transfer of the thermal energy from one substance to another. The quantity of heat Q is a product of heat capacity C of the substance and difference in temperature. So we know that whenever there is temperature difference between system and surrounding, heat flows from hotter to colder body. ठीक है, तो जहां भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है तो हीट ऑटोमेटिकली हॉट से कोल्ड की ओर जाएगा. ठीक है, सो हीट इज ए मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. ठीक है, Q can be written as heat capacity, that is C, into temperature difference T2 minus T1, where T1 and T2 are the initial and final temperatures respectively. By convention, Q is positive when it is added to the system from the surroundings. तो अगर सिस्टम में हीट जाएगा तो Q की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव. अगर सिस्टम से हीट बाहर आएगा तो उसको क्या लेंगे, Q is नेगेटिव. ठीक है, सो हीट एंड मैकेनिकल वर्क आर टू मोड्स बाय विच ए सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग्स. तो दो तरीका होता है जिससे सिस्टम सराउंडिंग में अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है, एक हीट और दूसरा क्या है, वर्क. ठीक है, सिस्टम इज अ पाथ फंक्शन एंड हैज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, जस्ट लाइक वर्क. सो वर्क एंड हीट, ये दो ऐसे फंक्शन है जो क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं और एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है. ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस टेकन इन द या प्रेजेंट इन द सिस्टम. नाउ इंटरनल एनर्जी. So internal energy, every system having some quantity of matter is associated with a definite amount of energy which is known as internal energy. It is generally written as E or U. ठीक है, so internal means अपनी अंदर internal energy. So it is defined as the internal energy is energy associated with a system by virtue of its molecular constitution and motion of its molecule. कि जो उसमें मैटर प्रेजेंट है उन सब की एनर्जी उसके कॉन्स्टिट्यूशन के नाते एंड मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स. ठीक है, सो इट इज जनरली रिगार्डेड एज या टेकन एज द सम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज एसोसिएटेड विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल सच एज
तो E total या internal energy can be written as the summation of translational energy plus rotational energy plus vibrational energy plus bonding energy plus electronic energies plus nuclear energy plus zero point energies plus other potential energies and kinetic energies. ठीक है. So simply internal energy is defined as the sum of the different types of energies associated with atoms and molecules present in the system. Generally it is written as या designated by symbol U or E. ठीक है. The internal energy of system changes when heat passes in or out of the system. जब किसी सिस्टम को हीट देंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, किसी सिस्टम से हीट निकालेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी घटेगी. Since all these type of energies are a function of temperature, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है सारी वैल्यूज. Work is done on or by the system. Obviously work is done on the system. ठीक है. सिस्टम पे कार्य करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा भी हीट एंड वर्क क्या है, दो मोड होते हैं जिससे कि सिस्टम की एनर्जी को चेंज कर सकते हैं. ठीक है. मैटर इंटर्स और लीव द सिस्टम. तो अगर अमाउंट ऑफ मैटर ज्यादा होगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी. ठीक है. और उसमें से अगर मैटर निकालते हैं सिस्टम से तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू घटेगी. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल एनर्जी. फर्स्ट, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब which values depends on amount of the substance present in the system. It is a state function, no doubt. The change in internal energy does not depend on the path by which the final state is reached. ठीक है. There is no change in internal energy in a cyclic process. Cyclic process मतलब जैसे सपोज मान लीजिए A से B में गए फिर वापस B से A में आ जाए, तो उस केस में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा. डेल्टा E इज नेगेटिव इफ एनर्जी इज इवॉल्व. सिस्टम से अगर एनर्जी निकाल रहे हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगा, घटेगा, तो दैट इज डेल्टा E नेगेटिव होगा. एंड डेल्टा इज पॉजिटिव इफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब. अगर सिस्टम कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा. ठीक है. नाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो इसके पहले हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था. तो एक्चुअली इन थर्मोडायनेमिक्स देयर आर 4 लॉज. जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ. ठीक है. तो जीरोथ लॉ पढ़ चुके हैं हम पहले. थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर कोई दो सिस्टम है तीसरे के साथ तो पहला और तीसरा भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा. नाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सिंपली द रिलेशन बिटवीन एनर्जी, वर्क एंड हीट. ठीक है. इट सिंपली सेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. On according to this law, the energy can neither be created nor destroyed. However, it can be only transferred from one form to another. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम पढ़ते आ रहे हैं अर्ली क्लासेस से, तो उसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है. नाउ सिंस अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर. ठीक है. तो एनर्जी भी क्या है, कंजर्व है, मास भी क्या है, कंजर्व है. ठीक है. सो इसको तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन आल्सो बी स्टेटेड एज the total mass and energy of an isolated system remains unchanged. तो मास भी उसका कंजर्व होता है, टोटल मास, और टोटल एनर्जी भी कंजर्व होती है. सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या बताता है, सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ठीक है. सो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, वर्क डन और ऑन द सिस्टम एंड हीट, इन तीनों में रिलेशन. ठीक है. इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. नाउ स्टेटमेंट्स ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो इट कैन बी स्टेटेड in a various form. First one is energy can neither be created nor destroyed. However, it can be transferred from one form to another, which is simply law of conservation of energy. Statement 2, the total energy of a system and its surroundings must remain constant. However, it can change from one form to another. ठीक है. Statement 3, work can be converted into heat or heat into work. That is, heat and work are equivalent to each other. ये भी कहते हैं heat and work are a form of energy. ठीक है. So these are some statements in which we can express the first law of thermodynamics. ठीक है. Now the mathematical formulation. Let Q amount of heat be added to a system and it's undergoes a state change from 1 to 2. That is initial to final. ठीक है. तो किसी सिस्टम को हम Q अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं जिससे उसका स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. ठीक है. जस्ट फॉर एग्जांपल कि आइस को आप बाहर निकालिए, आइस को थोड़ी देर के लिए बाहर रखते हैं फ्रीजर से बाहर निकाल के, वो एटमॉस्फेयर सराउंडिंग से क्या होता है, टेम्परेचर लेता है और धीरे धीरे उसकी मेल्टिंग शुरू हो जाती है. पहले वो सॉलिड होता है, धीरे धीरे बाद क्या हो गया, लिक्विड हो गया. तो उसका स्टेट चेंज हो गया जस्ट बाई हीट को उसने एब्जॉर्ब किया. ठीक है.
Now the heat taken up by the system can be used to increase either its internal energy, तो obviously कि अगर सिस्टम को हीट मिलेगा, एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से, तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और डूइंग सम वर्क, ठीक है, और बोथ, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम को हम हीट देते हैं तो वो जनरली क्या करता है, अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा या वर्क डन करने में, कार्य करने में कट करेगा, या दोनों में कर सकता है, ठीक है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इट कैन बी रिटन एज, सिंस इट इज सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो जितना हमने हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, जितना उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम ने कितना कार्य किया। सो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम मैथमेटिकली रिटन एज Q इक्वल टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी डेल्टा E प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। सो वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव साइन, सो यहाँ में that is why it is negative sign is taken here, that is minus W is written here, ठीक है, और डेल्टा E माइनस W। जैसे सपोज अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो ऑब्वियसली यहाँ में क्या लेंगे, प्लस साइन, सो डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W, ठीक है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिंपली ये कहता है कि अगर किसी सिस्टम को हम Q अमाउंट हीट दे रहे हैं तो वो दो कार्य करेगा, कि अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, दैट इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कि अगर हम किसी सिस्टम को 100 किलो जूल दे रहे हैं तो उसमें से 40 किलो जूल अगर अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च कर दिया तो बाकी एनर्जी कहाँ जाएगा, तो 100 माइनस 40 दैट इज 60 किलो जूल वो वर्क डन करने में खर्च करेगा, ठीक है। फॉर इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चेंज dq equal to dE plus dW and dW can be written as P into dV. So this is the mathematical formulation of the first law of thermodynamics, इसको हम आगे यूज करेंगे। So first law of thermodynamics कहने का मतलब dq equal to dE plus P dV, ठीक है। So dq मतलब just small amount of heat Q is given to the system या absorbed by the system, dE मतलब change in internal energy and P dV is the work done by the system, ठीक है। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। नाउ लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए फर्स्ट नंबर 1, दिस लॉ डज नॉट से एनीथिंग अबाउट सोर्स ऑफ हीट एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। तो ये सिर्फ ये बताता है कि यस अगर इफ देयर इज एनी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग तो हीट का फ्लो होगा, ठीक है, फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर की ओर, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट ये नहीं बताता कि क्यों हमेशा हॉट से कोल्ड की ओर ही जाएगा, कोल्ड से हॉट की तरफ हीट क्यों नहीं जाएगा, ठीक है। सेकेंड लिमिटेशन, दिस लॉ डज नॉट डिफाइन द ईज और एक्सटेंट ऑफ कन्वर्टिबिलिटी ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, ठीक है, कि सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेल्स अस एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर, बट उसका ईज नहीं बताता कि कितनी आसानी से हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, या व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ कन्वर्टी, कितना परसेंट, कितना हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड, द फर्स्ट लॉ डज नॉट कंट्राडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ हीट इंजन ऑफ 100% एफिशिएंसी और सेल्फ एक्टिंग मशीन्स, ठीक है। मतलब ये कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहेंगे कि अगर हम किसी सिस्टम को 100 किलो जूल देते हैं, ठीक है, तो उससे हम 100 किलो जूल का वर्क पा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो सिस्टम को हम Q अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं वो क्या करेगा, अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च करेगा और वर्क डन, ठीक है। इफ देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सो Q इक्वल टू W, ठीक है। बट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस टेल्स अस दैट सच हीट इंजन्स एंड मशीन्स आर नॉट अटेनेबल इन प्रैक्टिस, जिसको हम लोग कैन नॉट साइकिल बोलते हैं, एफिशिएंसी। अभी तक कोई ऐसा इंजन नहीं बना है जिसकी एफिशिएंसी क्या हो 100% हो, क्योंकि फॉर्मूला आता है ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1, जो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे और केमिस्ट्री में भी आगे मिलेगा। सो कैनॉट साइकिल ने प्रूफ किया था कि किसी इंजन की एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1, तो 1 माइनस है मतलब हमेशा लेस देन 100% एफिशिएंसी का कोई भी इंजन नहीं होगा। The first law states that energy of one form can be converted into equivalent amount of energy of another form, that is law of conservation of energy, but it does not tell that heat energy cannot be completely converted into an equivalent amount of work, ठीक है। So this is the most serious limitations of the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics ये कहता है कि हम हीट को 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट ऐसा कोई इंजन अभी तक नहीं बना है जिसकी एफिशिएंसी क्या 100% है। That's why the second law of thermodynamics is needed, ठीक है।
तो हमें आगे मिलेगा, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यह लिमिटेशन था कि वो डायरेक्शन नहीं बताता, वो 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब किसी इंजन की एफिशिएंसी 100% हो सकती है, लेकिन वो अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसका रीजन नहीं बताता कि ये क्यों नहीं पॉसिबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।